Hare Krishna Soham. Hare Krishna, sir. So my name is Soham Surve, and I am from Thane, Kalwa, Maharashtra. And I have secured All India Rank 3 in IIT JAM MS this year, and All India Rank 118 in JAM Mathematics MA. And I am done my graduation in MSc Statistics from Ramnath Roya College in Matunga. And I have completed my graduation on 6th of April this year. Okay, so you have cracked uh, two subjects in IIT. It's quite an incredible result, both stats and mathematics. So those who have given Thank you. so those who have given the exam, they know that the exam, like you have given in two shifts, like Yes, 3 hour, 3 hour exam. on same day. Yeah, it's quite an achievement. Like it's very good. Thank you. So I will mainly focus on statistics. Okay, Okay, because yes, yes. yeah. So you have scored AIR 3, All India rank 3. So when you first saw the result that you have ranked 3, so what was the first thing that have come to your mind? So when I first saw the result, I was knowing my result before that day because first the response sheet comes, which came on I guess 19th of February. So I then calculated my marks and I was getting 63.67. So I was knowing that I could be in top 10 most probably, but then too I waited for that 19th of March, that result of final day. So it was just normal feeling for me, not that big कि ऐसा नहीं कि पूरा मतलब वर्ल्ड कप ही जीत लिया ऐसा नहीं था, बस नॉर्मल फीलिंग था. आई वाज ग्राउंडेड एंड इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ. आई वुड बी आगे भी जो होंगे हर्डल्स आएंगे, आईआईटी में जाऊंगा तो और मतलब अचीवमेंट्स होंगी. सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ रेडी फॉर दैट बिगेस्ट कमिंग अपकमिंग इवेंट्स. Okay. So if someone starts preparing today for the next year, so what should be his roadmap or his or her roadmap so that they can also crack the exam, the statistics exam? सो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई बीएससी because I was having a plan in my mind to do BSc in mathematics. Then, so I joined in 2024 Santosh sir classes, math stats, and then I switched to Supriyam classes, Shashi sir. So I first begin with Santosh sir with some basics of statistics, like पहले तो मतलब definition जाने की क्या होता है, मतलब stats क्या होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मेरा वैसे था, मतलब फर्स्ट से आई सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, इंटीग्रल पढ़ा था, तो मुझे बस स्टैट्स के लिए कोई अच्छा कोचिंग चाहिए था, तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया. एंड देन फिर आई ज्वाइन टू शशि सर इन 2025 वो लक्षा बैच. तो मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग से मतलब बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली वी शुड मूव ऑन टू द पीवाईक्यूज ऑफ वेरियस एग्जाम्स लाइक TIFR for maths, NBHM, then CSIR net PYQs, ISI PYQs, GATE. But first focus on the basics of the subject fundamentals, which can make you prepare for that hardcore questions of that entrance level exam. Okay. So during your serious preparation phase, what was your daily routine? How was it like? डेली रूटीन तो मतलब मेरा ऐसा था कि फर्स्ट ईयर से मेरा कॉलेज का टाइमिंग था 10 o'clock से. सो आई यूज टू वोक अप एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरा फिर 6 to 7 था स्विमिंग का शेड्यूल बिकॉज आई लव स्विमिंग, इट्स माई हॉबी. सो आई यूज टू डू स्विमिंग इन द मॉर्निंग एंड देन 10 to 3 o'clock or 2:30 I used to have my classes in the college regularly. Then I used to come to home at around 4 o'clock, 4:30. Then I used to take a small nap or power nap of around 45 minutes. Then I used to study of college, the assignments, projects. एंड फिर 6:30 से 8:30 वो मेरा जिम का भी शेड्यूल था बिकॉज आफ्टर 12th मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी. तो 12th से लेके अभी तक टिल डेट वो जिम तो फिक्स ही है. फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा शेड्यूल मेरा बदल बदल गया क्योंकि मेरा स्विमिंग का जो मतलब था स्लॉट, क्योंकि वो बंद हो गया क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब स्विमिंग का काम भी चालू हो गया मेरे पूल के यहाँ पे, मतलब रीबिल्ड करने लगे. तो फिर वो और क्लासेस भी कॉलेज के 7:30 से हो गए. तो फिर 7:30 से अराउंड 1 o'clock, 2 o'clock इन द आफ्टरनून आई यूज्ड टू हैव माय क्लासेस कॉलेज का. सो वहां से फिर आना और फिर बाद में मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली सेकेंड ईयर में. तो फिर उसके भी नोट्स बनाना, जो प्रीवियस नाइट सर पढ़ाते थे तो मैं वो वीडियो देखता था और फिर नोट्स बनाता था. तो ऐसा मेरा शेड्यूल था और अभी से मतलब सेकेंड ईयर से अभी तक का वही शेड्यूल है. Like it's a monotone schedule, not just single change in that. Okay. So what do you think that what is the biggest difference in between an average aspirant of IIT JAM and a top rank holder? Difference, I would not say it's much difference, but I can say that जो आप 3 घंटे में जो एग्जाम देते हो आईआईटी जैम का, वो मतलब फर्क पड़ता है क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, और मेरे से भी बढ़िया बढ़िया बेहतर लोग हैं मतलब पढ़ाई करने वाले. लेकिन फर्क आता है उस 3 घंटे में कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, प्रेशर नहीं लेते हो, खुद को कूल रखते हो, खुद पे भरोसा करते हो. तो एवरेज स्टूडेंट और जो टॉप 10 रैंकर्स उनमें एक ही फर्क होता है कि वो उस 3 घंटे को तुरंत मतलब कैप्चर करते हैं, मतलब उससे यूज टू हो जाते हैं. लेकिन जो टॉप 10 के नीचे स्टूडेंट्स होते हैं वो उस प्रेशर को मतलब झेल नहीं पाते. तो डिफरेंस तो यही पे होता है, वरना
आई वुड नॉट से कि टॉप 20 टॉप 10 में कोई डिफरेंस है. बोथ आर लाइक अच्छे बच्चे पढ़ने में. ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया से. वो भी मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है. बस फर्क आता है उस 3 घंटे के स्लॉट में कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हो आप उस एग्जाम को. हार्ड एग्जाम में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इजी में कैसे करना है. सो इट्स यही डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू मी. Okay, okay. That's is actually really correct thing that you have pointed out. The यस. exam hall atmosphere. Yeah. या. Okay. So during a preparation phase, what do you feel that like the biggest mistakes that an aspirant can make during his IIT JAM preparation? मिस्टेक आई वुड से दैट टुडेज जनरेशन आर लाइक दे वांट क्विक रिजल्ट्स. मतलब वो बेसिक से पढ़ना नहीं चाहते. मतलब किसी अगर मैं स्टूडेंट को कहूंगा कि आप एनसीईआरटी करो तो पहले तो वो बोलेंगे कि दे वुड हेजिटेट दैट व्हाई आई शुड रीड एनसीईआरटी नाउ. आई एम इन बीएससी ईयर, व्हाई शुड आई गो बैक. तो दे जस्ट वांट क्विक रिजल्ट. सो आई वुड से दैट स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू फंडामेंटल्स, फोकस ऑन योर बेसिक्स मोर एंड डोंट जस्ट रन फॉर क्विक रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको आ जाएगा. You have to first focus on the basics and then you have to build your foundations and then you can solve the hardcore entrance level exams. So the biggest mistake in the preparation of JAM is the students want quick results nowadays. They don't make notes, they don't focus on the definitions of various concepts. So I think that's the biggest mistake they should not make. And the other biggest mistake in the days before exam is they pressurize themselves. मतलब वो इसको खुद को इतना प्रेशराइज करते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब जैम नहीं हुआ तो क्या. ऐसा नहीं है. एग्जाम वो बस एक दिन का एग्जाम है. आप खुद पे प्रिपरेशन पे फोकस करो जो मैंने किया है उस 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में. तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा. तो जो आपने मेहनत की है वो भी मतलब पानी में उसका उस पर पानी फिर जाता है. तो प्रेशर नहीं लेना है. यही मुझे लगता है कि दो मिस्टेक्स है प्रिपरेशन में. Okay. So we all know that previous years and mocks are very important for any entrance exam. या. So how should students use them properly to get the maximum benefit? Okay, so nowadays the IITs are also making the exam level more difficult than previous 6 or 7 years. You must have also observed that before 2020 the exams question were not that conceptual, not that mixture of concept वाले questions. So अभी क्या हो रहा है कि वो नेट से भी क्वेश्चन ले रहे हैं, गेट से भी ले रहे हैं. तो मॉक में तो ऐसा नहीं कि बस पीवाई को करना चाहिए. हमें न्यू क्वेश्चंस पे भी फोकस करना चाहिए. मतलब नेट के हो गए, गेट के हो गए. मैथमेटिक्स में बोले तो एनबीएचएम के, टीआईएफआर के, आईएसआई के भी क्वेश्चंस आते हैं, एम मैथ के. तो उनको भी मतलब करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस पीवाईक्यूज किए तो एग्जाम हो गया. हमें बस पीवाईक्यू सिखाने के लिए होते हैं. बाकी जो टोटली न्यू क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में हमें डील करने उस 3 घंटे में. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें एक डेफिनेशन को 5 या 6 वे में कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वेरियस क्वेश्चंस, उसके प्रति भी फोकस करना चाहिए. Okay, okay. So during a preparation phase, have you ever felt demotivated that you feel that you are not doing enough? हाँ हाँ, हुआ ना. बहुत बार हुआ है. 365 में तो ऐसा था कि 200 में तो डीमोटिवेट था और 165 में मोटिवेट था. तो उसको मैंने कैसे डील किया था कि मैं जिम जाता था. तो वहां पर मतलब पावर लिफ्टर्स भी होते हैं. मतलब वो 250 300 केजी का स्क्वाट बेंच मारते हैं, डेडलिफ्ट मारते हैं. तो उनको देख के मुझे मतलब अंदर से ऐसी आंख थी कि ये लोग तो मतलब इतना डिफिकल्ट कर रहे हैं. क्योंकि पढ़ाई के सामने जो ये फील्ड है जिम एंड बॉडी बिल्डिंग का, इट्स मतलब वहां पे बहुत त्याग सेक्रीफाइस लगता है. मतलब मैंने खुद की आंखों से देखा है. तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई इसके सामने तो कुछ भी नहीं है. मैं क्यों डिमोटिवेट हो रहा हूँ. मुझे खुद को मोटिवेट करना चाहिए. मतलब ये कर सकते हैं. उस लेवल का सेक्रीफाइस और त्याग, डिसिप्लिन चाहिए. तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. तो मैं हमेशा अंदर खुद को एक ही बात बोलता था कि नहीं, मुझे भी करना है. इफ आई वांट टू डू समथिंग हटके देन द वर्ल्ड, देन आई हैव टू गो आउट ऑफ माई लिमिट्स. आई कैनॉट जस्ट स्टे इन माई प्रेजेंट. मुझे कुछ अलग करना है. तो यही मेरा एक था. एंड दूसरा, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माइकल फिलिप्स, हु इज 7 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स लगातार. उसने एक बात कही थी कि मैंने ना क्रिसमस सेलिब्रेट किया ना नेवर हैव गॉन एनी हैंगआउट्स. सो उसने हर बार बस 7 आवर्स दैट फॉर दैट वन गोल्ड मेडल ही हैज डन लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस. तो मुझे बस वही एक ध्यान में था कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ये सब छोड़ना ही पड़ेगा. मेरे आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. सो मेरे अंदर वही एक, क्या बोलते हैं, डीमोटिवेशन भगाने के लिए एक अंदर से आग थी. एक आई वाज इग्नाइटेड बाय दिस थॉट. Okay, nice, nice. And so the last question is that if you could give any piece of advice to the aspirants of this year, what will it be? I would give only one advice that don't get disheartened or don't get demotivated by your present. Just focus on that things which you are doing and which others can't do. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आज नहीं हो रहा है मुझसे तो मैं क्या करूंगा. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर थिंग्स विच यू कैन डू, विच आर इन योर कंट्रोल. आप अभी मतलब नीचे हो रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा नीचे रहोगे. आप नेक्स्ट टाइम भी बाउंस बैक कर सकते हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हर पॉडकास्ट में कि वो बेन स्टोक्स का, वो 2016 में जो उसने वो 4-6 खाए थे ब्रैथवेट के सामने, उसके बाद जो उसने 19 में कमबैक किया, 22 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बना, वो 19 का टेस्ट मैच था लीड्स में,
उसने वन हैंडेडली मैच निकाला, तो खुद पर भरोसा करो एंड मेन थिंग इज दैट पुश बैक योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ। और यही कहूंगा कि आपने जो सीखा है इस दौरान ड्यूरेशन में, 6 महीनों में, 1 सालों में, उस पर फोकस करो। एंड दूसरा मेन थिंग है कि लास्ट के 2 महीने में रश मत करो। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, जगलिंग मत करो कंसेप्ट के थ्रू, जितना आ रहा है उस पर ही फोकस करो। क्योंकि हम वी डोंट नो कि अगर एग्जाम हार्ड आए तो 50 मार्क्स में भी लास्ट ईयर 2025 में 50 मार्क्स में इट वॉज 6th रैंक। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, तो 50 मार्क्स में भी 6 रैंक आ सकता है। तो बस जितना आ रहा है उस पर फोकस करो एंड रेगुलरली कंसेप्ट के बारे में सोचो कि मैंने आज जो सीखा है मुझे उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उसको और मैं कैसे क्वेश्चन आईआईटी पूछ सकते हैं जो आज तक पूछा नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो मैं ये एडवाइस दूंगा मेरे जूनियर्स को, और जो लेंगे ड्रॉप मोस्ट प्रोबेबली 2027। Okay, okay. Thank you, Soham, for taking your time out, and our team is really grateful to you because you have taken your time out for this podcast. Thank you very much. वेलकम सर।